Person Podcast Season 3. Today I have a doctor. Interesting aspect of this particular doctor is that she is a doctor who deals in Ayurveda medicines. So here I welcome Dr. Rashmi Sonti. जैसे आजकल हम जैसे बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, lot of Ayurvedic practitioners, I don't know whatever capacity or whichever stream they choose, they generally talk about food and what you should be eating, how it helps inflammation और आपके emotions ये सब पे कैसे बढ़ता है. तो क्या आयुर्वेदा में nutrition भी is one of the branches? Yes, Ayurveda में diet and nutrition is like I would say 70% of treatment is Ayurveda with diet and nutrition, even the preventive aspect, because your body is all about what you eat. Yes, and it's about your choices of food, right? So आपको खाना क्या खाना है? This is more important based on your body type and Vata, Pitta and Kapha. correct. तो आपका बॉडी क्या मांगता है, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, इस हिसाब से अगर आप कंज्यूम करते हो फूड तो आपकी बॉडी में देयर इज हेल्थ ऑलवेज, देयर इज प्रिवेंटिव प्रिवेंशन ऑफ डिसीज इज हैपनिंग. इफ यू आर गोइंग टुवर्ड्स कि हां कंटिन्यूअसली खाना है, so then yeah, we'll invite you something. So since you're on the topic of Vata, Pitta and Kapha, can you just for the audience briefly just describe कि Vata body, Kapha body, Pitta body क्या होती है? अच्छा, so these are three different body types, but as such in a normal human being, single की priority मतलब ज़्यादा नहीं. Okay, now if I have to start with the basic, all the three doshas we call them, Vata, Pitta and Kapha, all the three are present in every human being. But only percentage and that's it. So it is only the amount of Vata that you have is higher than Pitta and Kapha, then you get all this Vata. Yeah. So it similar सभी में अगर आपका पित्त थोड़ा सा ज़्यादा है Vata और Kapha से, then it is your Pitta body type. Pitta dominated body dominance is ज़्यादा. Yes. और तो what is the quality or whatever? How do you recognize कि ये Vata के traits है और ये Kapha के traits है? What are those? So there are a lot of combinations that we make when we do there's a questionnaire the analysis that we do. तो इसमें again दो चीजें होती हैं. बॉडी टाइप एक चीज होती है and विकृति मतलब डिसीज या वो स्पेसिफिक कंडीशन की तरफ से आपके बॉडी में कौन सा दोष बढ़ा हुआ है, ये एक होता है. तो बॉडी टाइप आपकी बनती है इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर मदर्स होम, तो आपके पेरेंट्स का कैसा है and the environment that you are in and आपकी weather conditions कैसे थी when you were born, and after birth आपका food क्या क्या आपको दिया है, कैसी चीजें खिलाई है, तो all these matter. So by the time your prakriti is formed, तो ये सब dominate करती है कहाँ से आता है. But then बाद में आपके behavior कैसा रहता है and आप क्या क्या खाते हो, क्या some addictions या ऐसे कुछ भी आप if you're taking anything like smoking ज़्यादा करते हो तो आपका बात बढ़ जाता है, even if you are a pitta or kapha individual. So these things again matter a lot. तो जब patient हमारे पास आता है, somebody is talking, what we first see is अभी का condition क्या है. Then when we do a prakriti analysis with the questionnaire, that is when we understand कि इसका actual body type क्या है. So जब Vata, when we say a person has Vata, what it means is again उसका looks is what when the patient starts walking in, right? वहाँ से हम देखते हैं तो या उसका gait कैसा है, is he very fast, उसके बातों में कैसा है, the way he's talking, is he taking pause and talking, मतलब ठहराव है तो that is again Kapha. If he's rumbling speech बहुत fast जैसे बात करते हैं, that's Vata. And Pitta is थोड़ा मितभाषी होता है, but then when he talks to the point. So वैसे it is again type one by signature box से कैसे पता चलेगा? Kapha would be like आराम से करते हैं सब कुछ, उसको कुछ जल्दी नहीं रहती है, Vata को जल्दी रहती है, ये करते हैं फिर वो करते हैं. So like it's like energy levels high रहते हैं. Energy levels. And what about Pitta? Pitta के भी energy levels high रहते हैं, but Pitta थोड़ा सोच कर रहता है. So there's basically Pitta is like a little balance, moderate. Yeah. And other elements like internal elements that you आपके प्रेसिडेंट से पता चलता है, उसमें कैसे Vata और Pitta का पता चलता है? तो इंटरनली हमको क्या पता चलता है, Pitta people have more body heat inherently. Okay. And Kapha people are like moderate रहते हैं, उनको they tend to gain weight easily. ये सब चीजें रहती हैं. Pitta person gains weight, he loses also easily. And what about Vata? Vata weight gain नहीं करता कुछ भी. अगर weight gain किया तो फिर उसका lose करना is difficult, but नहीं करता है. And what about body heat? Body heat, so Vata is air. तो एयर कैसे रहता है, वायु कैसे रहता है, ठंडा, तो वो ज्यादा ड्राइनेस कर जाता है बॉडी पर, ऑल दिस थिंग्स. पित्त कैसे हीट, पित्त इज फायर, तो हीट कैसे रहता है, सो पित्त पर्सन का स्किन बहुत अच्छा रहता है बिकॉज़ हिज अग्नि इज गुड, तो ही हैज गुड एपेटाइट, ये सब चीजें. अभी आपके हिसाब से फिलहाल मेरे गेट पर मेरी बात करने के हिसाब से यू हैव ऑब्वियसली स्पोकन टू द पेरेंट, व्हाट डू यू थिंक इज माय नेक्स्ट प्रायोरिटी? योर प्रायोरिटी. So that's a good question because practically and I like that. I didn't expect this coming, but this is essential because that is how understanding कैसे assessed होता है. So if gait is normal, तो ऐसे कुछ fast नहीं है, तो because we were talking about gait first, I'm coming there. तो आपकी gait normal है, तो that we can just keep it aside. और looking at your skin, it is like glowing, बहुत अच्छा है. तो ये पित्त वाला so light effect हो सकता है.
but at the moment, yes, उस हिसाब से. But even otherwise, like when I have seen you, you always had a good skin. I don't think there's some skin issues are there. And you have a static mind. मतलब static as in आप कुछ खाते हो तो करते हो. That I have seen. मतलब शुरू से मैंने देखा है. तो ये भी एक पित्त और कफ वाला रहता है कि आप you think about it, you decide and you act on it. That is pitta. But act करने के बाद stability रहती है. That is kapha. Okay. So pitta and kapha together is what you look like. जैसे हमने कहा कि खाने की बात हम बहुत करते हैं. Ayurveda से 70% is everything is like the cure or the prevention is food. So ऐसे I'm pretty sure बहुत लंबी list होगी, but if you can just list out the most important food items which A are like completely not allowed. You know what I talk about. please, the audience needs to know. Usually जो patient भी आता है तो first हम इससे शुरू करते हैं कि आप क्या खाते हो और क्या नहीं खाते हो नहीं पूछ सकते क्योंकि आप खाते हैं आपसे पता चल जाता है क्या नहीं खाना चाहिए. तो yeah, so very first is I'm a torchbearer of no maida. तो ये एक चीज मैं हर पेशेंट को बोलती हूँ irrespective of if he consumes or not. क्योंकि मैदा ऐसी चीज है it is refined wheat obviously and many people question कि आप रोटी खाने बोलते हो लेकिन फिर बोलते हो कि मैदा नहीं. ये कैसे पॉसिबल है? तो wheat है. बट जितना आप रिफाइंड फ्लावर कोई भी कॉर्न फ्लावर फॉर दैट मैटर जितना आप रिफाइंड फ्लावर या रिफाइंड फूड खाओगे उतना आपके बॉडी को इफेक्ट करेगा and because it's deprived of all the nutrition every which way. Yes, yeah. And it's going to affect your metabolism in a very bad because वो तो एक फिलिंग होता नहीं है and second thing is वो बैठ जाता है. तो इससे you start having अजीब फीलिंग आती है when you eat back to back. आप जब ऐसी चीजें कंज्यूम करते हो that is when you have craving also. तो ऐसे मेरे पास पेशेंट्स आते हैं. मैं एक एग्जांपल हमेशा देती हूँ. एक कोई पेशेंट है उनको ही चिटेड फ्रॉम दिल्ली रिसेंटली कभी हैदराबाद को तो मेरे पास आए थे पहली बार एंड जस्ट टेक्स्ट तो आई टोल्ड हिम ही वाज अ फैन ऑफ मोमोज. मोमोज तो मैदा से ही बना. तो ही सेड डॉक्टर साहब आप कुछ भी बोलो मोमोज छोड़ मत. अच्छा सबसे पहले मोमोज मत करिए आप यू नो एंड हिज फॉलो अप वाज इन 20 days like 3 weeks के बाद ही केम बैक एंड आई आस्क्ड हिम सो हाउ इज इट गोइंग देन नो मोमोज. ही सेड अभी मैंने बंद किया एंड आज की तारीख में if I look at momos I feel like puking. Something that was so dear to him. So that's the whole thing, right? So you have to give that kind of space to your body to detox all the kachra that you have accumulated over so many days. एक बार वो निकल जाता है then you won't have that craving as such. Second thing is आपको एक तो बेनिफिट पता चलता है कि आप जो अच्छा खा रहे हो उससे आपकी बॉडी पर क्या इफेक्ट हो रहा है जो नहीं था पहले जिसकी तरफ से आपको डिसीज जैसे लग रहा था. So you prefer having that क्योंकि सबको पता होता है कि ये खराब है ये अच्छा बट उन्होंने जो छोड़ा है they have eaten on the occasion use किया and बहुत ने तो completely छोड़ भी दिया. This is as much required क्योंकि सिर्फ मेडिसिन लेने से नहीं होगा because at the end जब हम पेशेंट को छोड़ते हैं कि you have heat तो पेशेंट को पता होना चाहिए कि किस तरफ से आया है किसकी तरफ से आया है and they also have to know कि okay so मैं ये खा रहा हूँ तो this is happening तो मुझे ये अवॉइड करना है. तो ये हीलिंग प्रोसेस भी पता होना चाहिए and you can sustain that also if you know yes. about it. क्योंकि पेशेंट मेरे पास तो मैं रखूंगी नहीं ज्यादा उसको ठीक करके या फिर मैनेजेबल डिसीज होगा तो कैसे मैनेज करना है इज वन थिंग दैट आई टेल हिम. सो या इट इज रिक्वायर्ड कि उसको पता चले बिकॉज योर गट टेल्स यू एंड सबसे जरूरी बात ये होती है कि यू लिसन टू योर गट बिकॉज यू गेट दोस सिग्नल्स और आपकी बॉडी आपको बोलती है कि ये खाना अच्छा है ये खाना खराब है. यू नो you always come across people जो they just pop in pills कि मुझे acidity हो रही है I'll take this pill मुझे gas हो रही है I'll take this pill. But are you looking at your food? So food is that important. कि I had that तो मुझे तो कुछ हुआ नहीं पेट में. Is that still a culprit for this kind of disease? Rheumatoid arthritis, for example, okay, have pains in the small joints. Oh, okay. So there's a wonderful cure in Ayurveda for it. Cure depends on the stage of the disease. कितना जल्दी हमने diagnose किया. अगर बहुत ही delay हो गया diagnosis या बहुत severe condition में है patient तो उसको manage कर सकते हैं अच्छे से with regular treatments. Early stages में we can cure it. तो ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पर हम उनको बोलते हैं कि आप ब्रेड हटा दो शुगर हटा दो कॉफी हटा दो. हम जब ये सब देते हैं जैसे कि मुझे कुछ नहीं होता है आई डोंट हैव कॉन्स्टिपेशन आई डोंट हैव लूज मोशंस पेट में तो कुछ होता नहीं है दैट व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट फूड. तो दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम ओवरऑल द माइक्रो मेटाबॉलिज्म जो बॉडी में हर जगह पर होता है मतलब एवरी सेल इन योर बॉडी इज हैविंग इट्स ओन मेटाबॉलिज्म. उसको जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट कर रहा है आपका खाना ये आपको समझना जरूरी है. Does Ayurveda allow non-veg or there is a space for it क्योंकि अगर आप इस बॉडी टाइप के हो तो खा सकते हो या फिर it's completely This is a very controversial question but मैं आपको बोलती हूँ जो मैं बिलीव करती हूँ जो मैंने पढ़ा है. Ayurveda doesn't say no to non-veg at all. Okay? एक ही चीज होती है जहाँ पर आपको non-veg अवॉइड करना है that is सात्विक बुद्धि. अगर आपको आपकी बुद्धि सात्विकता में रखनी है you know देन आपको नॉनवेज अवॉइड करना है. एंड फ्यू डिसीजेस अगर डिसीज कंडीशन में आपको नॉनवेज अवॉइड करना है देन वहां पर तो बिकॉज दैट इज टफ टू डाइजेस्ट आपका मेटाबॉलिज्म उससे भी हैम्पर होता है. बट एज सच नॉन वेजिटेरियन फूड कंप्लीटली अवॉइड करना है ऐसे तो आयुर्वेदा बोलता नहीं है.
इनफैक्ट हम्म। देर आर अ फ्यू रेमेडीज जहां पर मांस रस मतलब मटन का सूप या बोन सूप, these are recommended in Ayurvedic texts. for जैसे certain diseases. certain conditions, जैसे कि Conditions. वन सिंपल एग्जांपल इज वेट गेन. हम्म। अगर किसी को वेट गेन करना है पूरा मेटाबॉलिज्म उनका सेट करके व्हेन दे हैव गुड अग्नि तब उनको देते हैं मांस रस, उनका वेट गेन होता है. सो दैट इज वन हम्म। एग्जांपल आई गिव यू. हम्म। तो वैसे रेमेडीज है आयुर्वेदा में जहां पर मेंशन है टेक्स्ट में. हम्म। तो कंप्लीट नॉनवेज अवॉइड नहीं करना है, बट द वे यू प्रिपेयर इट दैट ऑल आल्सो विल बी डिफरेंट. मतलब जो ग्रेवी रहता है ना, फॉर दैट मैटर इवन द वेजिटेरियन करीज में जो ग्रेवी रहता है, ये मैं पेशेंट को भी समझाती हूँ कि दैट इज वन बिग कल्प्रिट. जो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जो आपका एसिडिटी होता है, ऑल दोज स्टमक डिसऑर्डर्स जो होते हैं आपके, है ना, ऑल दोज थिंग्स आर बिकॉज ऑफ द ग्रेवी इन योर करीज. ओके. बिकॉज आप जब ग्रेवी बना रहे हो तो कितना तेल डाल रहे हो, एंड वो कौन सा तेल तेल डाल रहे हो? हाँ, दैट इज अनदर टॉपिक टू डिबेट. कौन सा तेल इज अनदर टॉपिक. Refined, I'm pretty sure you will not say yes. बिल्कुल नहीं. बिल्कुल नहीं. And आप जब ऑयल डालते हो फॉर कुकिंग योर ग्रेवी, राइट, ऑयल आपका उड़ता है, बट वेयर इज इट गॉन? इट इज अब्सॉर्ब्ड बाय ऑल द मसाला दैट यू पुट इन, राइट. आपने शायद तिल डाल दिया या खोपरा डाल दिया, बट सभी तो ये मसाला ही पी रहा है ना, तो उस फॉर्म में वो आपके बॉडी के अंदर जाएगा एंड इट्स गोइंग टू क्लॉग योर आर्टरीज. सो एग्जांपल मैं देती हूँ. मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, मैं बोलती हूँ आपको मसाला नहीं खाना है. लोगों को लगता है मसाला टर्म एक्चुअली इसको यूज नहीं करना चाहिए, तो मैंने उसको शिफ्ट किया कि ग्रेवी वाली करीज नहीं खाना है या ग्रेवी वाली चीजें नहीं खाना है. सो लोगों को लगता है जब हम मसाला बोलते हैं हम सब्जी का मसाला बोल रहे हैं. हाँ, कि मिर्ची नहीं खानी. दैट वे खाली मिर्च नहीं खाओ, मत या खाओ. वो नहीं, वी डोंट मीन दैट, दालचीनी एंड ये सब नहीं है हमारा. उनका क्योंकि अपना खुद मेडिसिनल वैल्यू है. यस वो तो जानना चाहिए, बिकॉज दैट्स व्हाट इज गिविंग द इंडियन कम्युनिटी इट्स इम्यूनिटी. यस. नहीं तो हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा उसकी ही तरफ से, राइट. तो स्पेसिफिकली बोलना पड़ता है कि आपको ग्रेवी नहीं खाना है. और अगर हम बोलेंगे ठीक है आप चिकन मत खाओ, मटन मत खाओ, पेशेंट नेक्स्ट टाइम आकर बोलता है कि मैंने पीसेस नहीं लिया, ये द ग्रेवी. Then let's say कुछ ऐसे डिशेस होते हैं जिसमें ग्रेवी होती है. So then is there any healthier or आयुर्वेदिक वे कि आप उसी ग्रेवी को अच्छे तरीके से बना सकते हो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द हेल्थ एस्पेक्ट ऑफ इट? तो इसको ऐसे कर सकते हैं, बट अगेन दैट वुड नॉट टेस्ट सिमिलर. बट उसको इतना भून भून कर तेल पूरा पीने तक तेल दिखे ना और फिर तेल छूटे, इतना नहीं करना चाहिए उसको. और तेल कम कर सकते हैं, तेल कोल्ड प्रेस ऑयल इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर या रिफाइंड. आप प्लेन प्यूरी वाली ग्रेवी यूज करो ना, या दही वाली, ऐसी ग्रेवी यूज करो ना. ओके. अब फिर हमारे जैसे ट्रेडिशनल फूड बनता है, इंडियन ट्रेडिशनल फूड जो बनता है दैट इज सब्जी. आपकी सब्जी इज पकी हुई सब्जी. यू आर नॉट उसको ग्रेवी में डुबो नहीं रहे हो. दैट इज नॉट हाउ इंडियन ट्रेडिशनल फूड इज मेड. जैसे इफ आई करी इज देयर बट इट्स नॉट लाइक ग्रेवी. अगर मैं क्यूजीन्स बताऊं आपको, तो आई विल स्टार्ट विद तेलुगु क्यूजीन बिकॉज़ आई एम अ तेलुगु पर्सन, तो मैं वो जानती हूँ बचपन से. तो ट्रेडिशनल तेलुगु फूड में आपको एक वेजिटेबल को हम दाल के साथ पकाकर बनाते हैं. तो आपको हो गया आपका प्रोटीन एंड ऑल दैट न्यूट्रिशन भी मिलता है, सब्जी भी मिल जाएगा आपको. तो आइडियली हमको कैसे चाहिए, मतलब हमको एवरीथिंग शुड बी इन वन पैकेज, वो आपको आपके करी में मिलेगा. Right. Sambar is also a good example for that. Yes. You have your dal, you have your sabzis and all cooked in together. Yes. Similarly, I have lived in Pune, Maharashtra, और मैंने देखा वो क्या खाते हैं. They eat very Maharashtrian food. मुझे बहुत आफ्टर तेलुगु फूड मुझे वो बहुत हेल्दी लगता है, क्योंकि वो क्या खाते हैं, पिटला भाकरी. कितना फाइबर है बहुत. और भाकरी जब वो बनाते हैं दी ऐड दाल का आटा, उसमें आपको आपका प्रोटीन मिल जाता है, कार्ब्स मिल जाते हैं, राइट. तो दिस कॉम्पैक्ट जो आपका पूरा पैकेज, and the cooking style is also such that it does not hamper the nutritionist. उनके वेजिटेबल्स भी ऐसे ही बनते हैं जैसे मैंने बोला ना, पक कर सब्जी पकाना है आपको. आयुर्वेद में यस देयर इज कंपैटिबिलिटी, फूड कंपैटिबिलिटी होती है. तो आपके अगेन द रीजन व्हाई वी आर असेसिंग द प्रकृति इज दैट कि आपके बॉडी टाइप को व्हाट काइंड ऑफ फूड इज कंपैटिबल. सॉरी, ओके. तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं हार्ड टू डाइजेस्ट एंड इजी टू डाइजेस्ट फूड्स, फाइन, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है. तो आपका डाइजेशन कैपेसिटी, जिसको हम अग्नि कहते हैं. अगेन व्हेन आई से मेटाबॉलिज्म, आई वांट टू अंडरलाइन हियर कि वी आर टॉकिंग अबाउट एवरी सेल मेटाबॉलिज्म. वी आर नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट स्टमक में जो डाइजेशन हो रहा है, वो एक ही नहीं है. सो मेटाबॉलिज्म इन एवरी सेल, कि So it's metabolism, digestion, and does it also include absorption, assimilation जो बोलते हैं हम. Yeah. So all of this is metabolism in the body. Okay. And that is the agni that you're talking Agni, about. yes. Agni at the cellular level also we are So talking basically about. आपकी body कोई भी चीज अगर आप डाल रहे हो तो उसको process कैसे कर रही है? How is it responding to? Yes. So that has to be good. And अगर आप hard to digest food खा रहे हो, तो आपकी अग्नि बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब जाकर आपका जो कुछ भी खा रहे हो आप तो डाइजेस्ट हो जाएगा. तो अगर आपकी बात टाइप ऑफ बॉडी है, तो यू शुड हैव घी एंड ऑयल. दैट अगेन वी टॉक अबाउट पोल्ट्री ऑयल. द टाइप ऑफ ऑयल दैट यू यूज आल्सो शुड बी अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक कंडीशन. तो आप सेसमे ऑयल यूज कर रहे हो या मस्टर्ड ऑयल यूज कर रहे हो कुकिंग में, दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. अगर आपकी पित्त बॉडी टाइप है, तो यू शुड नॉट बी ईटिंग लॉट ऑफ स्पाइसी फूड्स जैसे and chili, as in I'm talking about spice, as in spice नहीं बोल रही हूँ, तीखा, हाँ, that chili sort of foods और heat generating जैसे foods होती है, वो आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है. और अगर आपका कफर टाइप ऑफ बॉडी है, तो आपको बहुत ही ज्यादा foods that cause accumulation of कफर in the body,
वैसी which चीजें means नहीं like हैं। जैसे ठंडी चीजें. नॉट जस्ट नहीं, ठंडा, okay. यही चीजें जो बैठ जाती है, हाँ, like मैदा Again, yeah. which takes too much time to process or digest. या या जो नहीं होती है accumulate digest, हो हाँ. जाती है, हम इसको आयुर्वेद में अभिषेल्दी कहते हैं। अभी अभिषेल्दी, अभिसंधि. या हाँ. तो ये क्या करता है, आपके चैनल्स को ब्लॉक कर देता है, Hmm. बिकॉज सर्कुलेशन आपका सिर्फ ब्लड में नहीं हो रहा है, आपका न्यूट्रिशन सर्कुलेशन शुड हैपन इन योर एवरी, लाइक आपके सेल्स में सर्कुलेशन होना चाहिए, आपके सिस्टम्स में सर्कुलेशन होना चाहिए, तो ये सारा ही ब्लॉक कर देता है। दिस इज द अभिषेल्दी, जो संस्कृत टर्म, Okay. ठीक है। तो दैट काइंड ऑफ फूड शुड बी अवॉइडेड बाय कफर पीपल। तो जो भी पिष्ट जो रहता है, जैसे मैंने बोला कॉर्नफ्लोर, तो ऐसी चीजें सारी रिफाइंड चीजें, ये चीजें अवॉइड करना है। There's something that I have recently come across. I always knew about postmenopause, menopause, but something that I got to know, there's a period before menopause, which is called perimenopause, where there is another transition of a woman's body that is happening, and there's a lot that is going on. And if you want to have a more comfortable menopausal time and postmenopausal phase, and or even during perimenopause, because बहुत hormones आपके इधर उधर erratic हो रहे होते हैं, but there are ways that you can balance it out, or at least make it more convenient and comfortable for you. So this is one topic that I don't know if I'm going through that or not, but it is generally said कि above a certain age you are in today's time, जिस टाइप का हमारा environment है, आसपास है, pollution है, सबको लेके एक certain age पे you're bound to hit perimenopause, और इसका कोई टेस्ट भी नहीं होता कि आपको पता चले. There are certain symptoms, but they can also be clubbed with some other symptoms also. But are there any things like food or any kind of exercises or whatever you feel कि okay, if a woman is a certain age and is going through perimenopause, this is how she can make it a little more comfortable and more smoother process for her in the transition. So for women of any ethnicity, any age group, the most important is stress management. बहुत ज्यादा जरूरी है. And second thing is sleep. Yes. These are very, very, very important. All the women who come to me, I say all the women who come to me, right? या तो they are stressed, जिसकी वजह से नींद ठीक नहीं है, या sleep is disturbed, which is hampering their daily life. And वो stress को बढ़ा रही है. बढ़ा रहा है. So basically they're both co-dependent. They are, yeah. So होता क्या है? As women, because you have estrogen. हाँ. Estrogen ऐसी चीज है, it is your front foot soldier है वो. For every woman, it is the one that is driving you. मतलब that is the one that is saying, okay, मैं हूँ, चलो करो, I'll take care. अगर आपको आप हार्ट ट्रैक कर रहे हो एग्जाम्पल, और आपको उतना पेन नहीं है, you're feeling okay. This is during रेगुलर टाइम, हाँ, का नॉर्मल मेंस्ट्रुअल चल रहा है, रिप्रोडक्टिव फेज उसको बोलते हैं, हाँ, आपको पेन्स नहीं हो रहे, बट द सेम ट्रैक अगर आप आफ्टर अ पीरियड, जैसे आप पेरीमेनोपॉज बोल रहे हो, पेरीमेनोपॉज में अगर आप सिमिलर ट्रैक कर रहे हो, तो यू स्टार्ट हैविंग द लीक्स इन बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन एस्ट्रोजन. सिमिलरली आपका स्ट्रेस, आप आपके रिप्रोडक्टिव एज में जितना काम कर रहे हो, यू आर, हम अगर जनरल सिनेरियो लेते हैं, आप घर संभाल रहे हो, बच्चे देख रहे हो, ऑफिस कर रहे हो, और 12-12 घंटे ऑफिस का काम कर रहे हो, सिटिंग ऑन द लैपटॉप या मूविंग इन द फील्ड, जो भी, बिकॉज आई हैव क्लाइंट्स हु आर एट द फील्ड ऑल द टाइम एंड देयर इज नो टायर्डनेस. You have no tiredness. You're used to it. And आपने एक हैबिट बना लिया कि मैं ये ऐसे करूंगी. And you have hit 45. And उसके बाद आप यही कंटिन्यू कर रहे हो. And then you see that it is taking a toll on you. That is because estrogen is less. तो हमको ये फर्क समझना बहुत जरूरी है. And as you age, okay, ठीक है, mentally you think मैं सब कर सकती हूँ, I can do everything. But my suggestion is आप फिर कुछ ना कुछ रखो जहाँ पर आप स्ट्रेस मैनेज कर रहे हो आपका. Because the stress can affect you right from irritability, आपका sleeplessness, insomnia से लेकर it can go to frozen shoulder and autoimmune conditions. इतना तक affect करता है stress. Chronic stress causes autoimmune conditions. So ये हम समझते नहीं है, because हम अगर if we are acting on time, we can cut the disease progression. तो my advice always for women is, मैं जितना भी हम ट्रीटमेंट करें, जितना भी हम मैनेज करें, एक ही चीज मैं बोलती हूँ कि आप कुछ तो रखोगे, तो योगासन करते जाओ या प्राणायाम करो, या आपकी नींद ऐसी रखो अच्छी वाली, so that you're sleeping 8-9 hours, उस पर कॉम्प्रोमाइज मत करो, या you do some meditation every day, because managing your stress level is very easy. Stress ऐसा वर्ड हो गया है these days ना, हर कोई बोलता है हाँ स्ट्रेस है, but stress has so much weight in it. It is very deep. जो एक्चुअली स्ट्रेस से गुजरता है उसको पता है कि ये होता क्या है. एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी that can de-stress you is also okay. और would you say कि योगा तो आप कहीं ना कहीं डालो, या मेडिटेशन आप करो या ब्रीदिंग नहीं किया तो फिर ऑल ऑफ दिस. To answer your question, yes, योगासन तो मैं तो बोलती हूँ जरूरी है, for no other reason. योगा ऐसी चीज है when your muscle stretches, जब आप आसन कर रहे हो, right, the difference between gymming and yoga is that आप जब आसन कर रहे हो, you're staying in that posture, तो आप जब वो posture लेते हो, your muscle stretches and that releases a lot of antioxidants in the body. So आपका आसन is not just for your physical health, it is also for your mental health. So that is true. Yoga does centers you. जो करते हैं they know, yes, difference पता चल जाता है उनको. योगासन तो एक मस्ट है. अपार्ट फ्रॉम दिस, आप एक हैबिट डालो कि आपकी नींद अच्छी रहे, वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन women
usually don't pursue their hobbies. हाँ छोड़ देते हैं. हम उसको थोड़ा practical lens से देखें. तो what I have come across when I talk to my patients who is troubling them. Right? So जब हम बात करते हैं, we get to know कि they forget कि कुछ करते थे. There are women who have, and most of the women are very artistic. yes ये तो मतलब we can say कि Indian women are very artistic. कुछ ना कुछ रहता है. They have developed their some sort of creative या कभी ना कभी अगर Cooking teenage में itself किया is an होगा, art. that itself Yeah. is an art, right? Yeah. किसी को knitting पसंद है, किसी को swimming पसंद है, किसी को कुछ भी. And there are people who football खेलते हैं, tennis खेलते हैं, but they're forgotten just because they had busy schedules overnight. है ना? तो वो remind करना जरूरी है अपने आप को. हमेशा कोई आएगा नहीं. But then आप अगर आपकी हॉबी हमेशा रखो, because creativity, the art that you carry, right, that is always going to pull you out from stress. it is therapeutic Yeah. तो अगर आप उसको हटाते नहीं हो, तो that is at itself is a stress relief. तो ये you have to recognize, and individually ये बहुत ही individualized, बहुत ही personalized. तो individually every person has to keep their own art with them, is what I feel. And ऐसे क्यों? Men also have stress. yeah And men तो उनको तो अलग ही प्रोवाइडर हो तुम, अब तो तुम्हारी जिंदगी खत्म है, सबको प्रोवाइड करते हो. so their stress also has to be managed with hobbies, you know. So when we talk about women's health, you spoke about estrogen, but then we do have progesterone also. So how does that play a certain role, and what kind of role does it play? So hormones are not independent again. Okay. ये दोनों एक दूसरे को they're interinfluential. So both of them have to be in balance. ऐसे नहीं कि ये ज्यादा वो कम. But again हम जो हमारा menstrual cycle की बात हम जब करते हैं ना, चल PMS बहुत हो गया. आपका जब period आने के 10 दिन पहले this all starts when you're in luteal phase, okay? Yes. Yeah. तो at that point आपको आपका you want to take care of your well-being. किसी को जो period cramps होते हैं, they start from PMS. क्या हो गया ना, the world has normalized it कि ये होना normal है. आप कुछ भी खाओ, आप कुछ भी पियो. Again, ये थोड़ा सा controversial हो सकता है again, but मैं coffee मना करती हूँ. Okay. Because coffee removes your water content. Okay. It is a diuretic, minimal diuretic, but होता है उससे dehydration होता है. And अगर आपको coffee जरूरी है, तो मेरा suggestion ये रहता है patients को कि आप at least आपकी वो जो 10 days है उसमें मत लो. And hydrate yourself like a compensation for all these days जो आपने लिया है ना. You start taking some electrolyte, you know, so that आपका hydration बना रहे. And this is well observed और हमने patients में भी देखा है कि आपका अगर hydration सही रहता है, तो आपके जो menstrual cramps है, वो बहुत ही minimal रहते हैं. And we have also managed patients like that. Coffee is one thing. Junk food की तो हम बात ही करते हैं हमेशा. तो वो तो any time given time PMSing not PMSing खाओ ही मत. white sugar, हम white sugar हटाते हैं and patient के menstrual cramps बहुत बहुत कम हो जाते हैं. Oh. Yeah, we have seen this difference. तो ये सब हार्मोन बैलेंस में ही होता है ना. Again, तो yeah, you crave for it, but आपकी craving level, I'm not talking about craving zero. What I'm talking about is level of your craving reduces. और sugar, and I think sugar and maida and all these things have any which ways कि आप खाओगे आपको लगेगा भी भूख लगे, but they any which way spike it up. Yes. आपका glucose तो वो body और crave Crave करने करेगा. लगती है. Correct. That's what happens. And trust me, अगर आपने ये चीजें हटाई है, आपकी craving level कम होगी. And ये भी हम पेशेंट को बताते हैं, अगर आप शुगर क्रेव कर रहे हो, just for one cycle, आप ट्राई करो, and your body will tell you from next cycle कि यही करना है. अगर आप शुगर क्रेव कर रहे हो, आप dates ले लो. I hate that. Yeah. dates ले लो, take raisins, या just take मिश्री आती है ना, not the polished one, the धागे वाली मिश्री, हाँ. chew on it. आपकी क्रेविंग इतनी better आपको लगेगी, and you feel satisfied. ऐसे नहीं आप इतना एक बर्गर खाओगे इतना बड़ा सा, तो भी आपको इतना satisfaction नहीं रहेगा. And this we have observed in patients. We don't listen to our body signals. Okay. This is very important to understand that your body works with sun, not with anything else. क्योंकि आपका जो time difference है, आप अगर यहाँ हो, या maybe you're in USA, या you're in some other country, you know, आपका जो sun circadian rhythm आपका जो रहता है, वो sun के साथ चलता है. Okay. वो अपने आप adjust कर लेता है, लेकिन उसको confuse नहीं करना है हमको. You have to give it on time, as in you have to understand your hunger. Okay. आपके पेट को आपको समझना है. When it is, don't wait until it is growling. But once you start feeling hungry, you should consume. And food भी ऐसे लेना चाहिए कि आप यहाँ तक नहीं खा रहे. हाँ. Just fill 3/4 of your stomach with food. ऐसे आयुर्वेदा तो says just fill half of your stomach with food. और थोड़ा सा कुछ liquid रखो. जैसे आपने कुछ सूप ले लिया या buttermilk लिया. You know? Is dal also considered in that? Dal also. Okay. Yeah. जैसे हम in Hyderabad we take चारू रसम. Yeah. Rasam. Yeah. So that way some liquid you have to consume, and थोड़ी जगह रहती है वायु के लिए, क्योंकि वायु उसको प्रोसेस करता है. जैसे आपके ग्राइंडर में आप ब्रेड तक नहीं भरते हो, थोड़ी जगह रखते हो so that it churns well. That's what happens in your So you need to have that much space, keep the body healthy, उसको circulation होगा. Okay. I wanted to ask this thing, like nutrition की हम बात कर रहे हैं, but there's very this is what I believe because of our lifestyle and everything. एक time था जब cancer जैसी बीमारी, any kind of cancer was like a rare thing. Yeah. ठीक है.
But now it's like as good as cold and cough. Like so जब cancer का होता है तो chemo और allopathic medicines are very strong and बहुत hard होती है. And does Ayurveda, depending obviously what stage are we getting to know about the person's disease, but does Ayurveda has anything which deals with cancer or it is only कि हाँ support दे सकते हैं but it cannot cure or let's say heal or treat cancer? So that's a good question again. So cancer, yes, as you said, it has actually become a very common, like normal here. जैसे, हाँ. Yeah, पता चल रहा है बहुत ही. And as such, tumors भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, which may be benign also, हाँ. but tumor conditions भी बढ़ गए हैं. So this is again global. It's Ayurveda as such, it helps in supportive care, but stage of the cancer पर depend करता है. And if it is very bad, जहाँ पर chemo radiation हमको चाहिए, वहाँ पर अगर आप Ayurveda का supportive care लेते हो, तो that goes with ease. इतना पेनफुल नहीं रहता है पेशेंट को, साइड इफेक्ट्स बहुत ही कम रहते हैं, मिनिमल साइड इफेक्ट्स रहते हैं, एंड वी हैव सीन सच केसेस आल्सो. एंड इफ इट इज नॉट इन द पीक लेवल, अभी स्टार्टिंग स्टेज है जहां पर थोड़ा सा प्रिवेंट भी कर सकते हैं, स्प्रेड कैन बी प्रिवेंटेड, तो वैसे केसेस में आयुर्वेदा एंटायरली आल्सो हेल्प्स. Okay. And I don't personally, deal with cancer cases because I am into metabolic diseases and all these things. But there are Ayurvedic cancer specialists in Hyderabad and through India also. So many people don't know. So would like to give that credit to allopathic medicine क्योंकि they have really done a lot of research and बहुत ही अच्छा काम किया है in such cases. तो अभी जो life expectancy बढ़ती है patients की ना, that is all credit goes to allopathic medicine. But I sincerely feel that इसका they should be coupled with the holistic medicine also, so that जो side effects है, हाँ, उनको handle करने में जो holistic हमारे medicines का होमियो हो जाए या आयुर्वेदा हो, ये सारी चीजें बहुत ही help करती है. जैसे हम न्यूट्रिशन की भी बात कर रहे थे, diet also plays a very important role. जैसे आपका कीमो रेडिएशन चल रहा है, आप कुछ भी खा लो, आपको कुछ ज्यादा कोई गाइडेंस नहीं मिलती है कि आप क्या खा सकते हो, because doctor is very busy with treating you with the drugs. Okay, आपको डाइट का कैसे बताएं, डॉक्टर को टाइम है नहीं उतना, right? And obviously, so you have to take help of somebody who is an expert in this. And if you are taking help of Ayurveda, then your diet also will be taken care of because that is a big part of it, of Ayurvedic treatment. And supportive care भी मिलेगा जहाँ पर, as I said, आपके side effects कम रहेंगे and after effects, जैसे आपने देखा होगा post chemo, after years also वो blackish रह जाता है skin पर, and few people have that tremors आते हैं या fainting रहता है, even after chemo बहुत साल बाद ये होता रहता है या relapse होता है, ये चीजें थोड़ी सी manage हो जाती है and to very great extent with Ayurvedic treatment. Hyderabad best cancer specialist in Ayurveda is Dr. Aditi Kulkarni. If you want, we have one recommendation and the topmost cancer specialist in Ayurveda in Hyderabad, Dr. Aditi Kulkarni. We've really seen good results. And हमारे जो cases में कीमो चल रहा है वहाँ पर साइड इफेक्ट्स कम रहते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स कम रहते हैं, एंड पेशेंट आल्सो इज लेफ्ट विद गुड एडवाइस कि आपको फिर कुछ होता है तो क्या करना है. ऐसे ही हम पेशेंट को छोड़ते नहीं है कि इन एवरी केस दैट्स व्हाट वी डू एज आयुर्वेदिक डॉक्टर्स कि आपका क्योर हो गया, चलो आपका केस खत्म हो गया. वी डोंट डू दैट. वी हैव वन स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट जहां पर हम बोलते हैं ठीक है आपका भी हो गया केस, अभी आपको अगर ये सिम्टम्स आते हैं या कुछ दिखता है तो दिस इज व्हाट यू शुड डू और दिस इज हाउ यू शुड रिपोर्ट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली देन द ट्रीटमेंट इज सस्टेनेबल. तो कैंसर के लिए यू कैन डेफिनेटली यू शुड टेक आयुर्वेदिक होलिस्टिक ट्रीटमेंट का हेल्प लेना जरूरी है. हियर आई वांट टू टॉक अबाउट टू थिंग्स. पहले तो इफ वी टॉक अबाउट कैंसर कंप्लीटली बीइंग क्योर्ड, आई मेंशन्ड अर्लियर कि अगर इसका स्टार्टिंग स्टेज होता है जहां पर आपका स्प्रेड बहुत ज्यादा नहीं है, इट इज जस्ट डिटेक्टेड बिफोर द स्प्रेड हैपेंड ना, तो आप उसको कर सकते हो, यू कैन कंट्रोल इट स्प्रेड एंड उसको अच्छे से ट्रीट भी कर सकते हो, सो दैट फ्रॉम द रूट इट इज एलिमिनेटेड. बट इफ इट इज अ प्रोग्रेस्ड डिसीज, बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया है, तो यू रिक्वायर हेल्प ऑब्वियसली, एंड एज आई सेड इट इज अगेन एलोपैथी लेते हुए आपको सपोर्टिव लेना होगा, तो जड़ से निकलने के चांसेस है, दैट्स अ गुड थिंग. बट अगर हम सिर्फ एक लेते हैं तो देयर हैव बीन केसेस जहां पर कीमो हो गया, रेडिएशन के सब हो गया, बट पेशेंट सकम टू द ट्रीटमेंट एंड देन क्योर होने के बाद पेशेंट डाइड. ऐसे की केसेस हैं, और रिलैप्स भी करोगे, रिलैप्स भी होता है. तो दैट्स व्हाई आई वाज रिकमेंडिंग कि आप साथ में लो होलिस्टिक. एंड सेकंड थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इज, अभी हम जड़ से डिसीज निकालने की बात कर रहे हैं, तो आई फील दैट एवरी साइंस टीचेस द सेम थिंग कि आप रूट कॉज एनालिसिस करो और रूट से डिसीज निकालो, बट आई फील इट इज द अप्रोच अगेन. Because even when we have one-on-one discussion with allopathy doctors जो मेरे friends हैं, तो even they talk about root से disease निकालने का, but हमारा root अलग है और उनका root अलग है, लेकिन body वही है ना, body वही है, right. तो उतना हम analyze करके जब treat करते हैं, then definitely I think every science can help. But there is a need that both the sciences go hand in hand in many cases. जैसे आई एम अगेन प्रीचर ऑफ कंटेम्परेरी आयुर्वेदा, बिकॉज जो हमारा आयुर्वेदिक साइंस जो हमारे टेक्स्ट में लिखा है और जो हम पढ़ते हैं, दैट इज बहुत सारी जगह पर हमको अभी के फास्ट पेस वर्ल्ड में रेलेवेंस नहीं दिखता है, तो वी हैव टू ब्रिंग इट टू रेलेवेंस.
True. जैसे अगर आयुर्वेद बोलता है कि आप रेस्ट करो if you're not well. Now if a person is having back to back meetings, I can't ask him कि आज आप रेस्ट करो. काम नहीं करूंगा मैडम, It's पैसे not कौन लेकर possible. आएगा? Yeah, exactly. Because अभी लाइफ बहुत फास्ट हो गई है. हाँ. तो आयुर्वेद को कंटेम्प्रेरी वे में प्रीच करना और हम्म. उसको लेकर आना उस इसमें हम्म. बहुत जरूरी है. Only then it will stay relevant. Hmm. And many today modern Ayurvedic practitioners are doing it. Hmm. तो वैसे solutions बहुत So जरूरी है. basically tweaking and modifying and somehow finding कि आयुर्वेदा भी कर लो, but it Yes. somewhere brings in the balance कि Yes. तब की लाइफ में और आपकी लाइफ में फर्क है, तो अगर छोड़ देंगे तो भी गलत है और नहीं अगर पूरा ही अप्लाई करेंगे तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है. True. आयुर्वेद में एक चीज है, अग्नि अग्नि आप समझो हम्म. तो यू हैव टू ट्रीट योर अग्नि लाइक अ फ्रेंड. Okay. ओके, हम्म. तो फॉर एग्जांपल आपके फ्रेंड का बर्थडे है, हम्म. आप उसको क्या गिफ्ट दोगे? आप उसके पसंद का दोगे कि खुद के पसंद? उसके पसंद का बजट मेरा. दैट्स वेरी स्मार्ट. अभी बजट नहीं हो उसके पसंद का तो कहाँ से? सो यू हैव टू रिकॉग्नाइज योर अग्नि कि अभी आज मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, आई विल बी एबल टू डाइजेस्ट दिस, तो मैं ये खाऊं. अभी मुझे भूख नहीं लगी, मैं स्नैक नहीं करूंगा. सो यू हैव टू ट्रीट योर डाइजेस्टिव फायर या हंगर या जो भी है मेटाबॉलिज्म एज अ फ्रेंड एंड गिव इट व्हाट इट वांट्स, नॉट व्हाट यू वांट. कि मुझे ये खाना है अभी, दो योर स्टमक इज नॉट रेडी फॉर इट, आप भर रहे हो, डोंट डू दैट. अगर इतना हटेगा आपका, एंड द अदर थिंग्स जो हमने डिस्कस किया, जैसे हमने स्लीप पे बात की, जो हमने अवॉइड करने वाली चीजें जैसे मैदा, ब्रेड एंड शुगर, ये चीजों पे बात की, अगर ये चीजें हटती है तो बिलीव मी बहुत लोग विल बी डिसीज फ्री, एंड टू अ ग्रेट एक्सटेंट हम क्रॉनिक डिसीजेस प्रिवेंट कर सकते हैं, टू वेरी ग्रेट एक्सटेंट. Wow. तो आई थिंक दिस शुड बी द टेक अवे फ्रॉम बीज मंत्र. कॉन्वर्सेशन. देखो फ्री में कंसल्टेशन करा दी, इतनी बड़ी चीज बता दी. ये आई थिंक सब लोग बोलते हैं, लेकिन कोई नाउ दैट यू हैव गिवन अ डिफरेंट एस्पेक्ट आल्सो टू इट कि हाउ डज इट अफेक्ट योर बॉडी. बहुत सारी जगह पे हम सुनते हैं एलोपैथ डॉक्टर्स, ऑल ऑफ दिस पीपल हैव सेड कि व्हाइट शुगर, मैदा, ब्लडियम नहीं खाना चाहिए, बट ऑब्वियसली उनका अप्रोच और उनकी अंडरस्टैंडिंग हाउ इट अफेक्ट्स द बॉडी इज वन थिंग. आयुर्वेदा बिकॉज इट्स लाइक इट encompasses not just physical but mental, internal, emotional, mind and spiritual level पे, तो and holistic level पे, let's put it holistic level Yeah. पे, तो इस वजह से understanding that approach is something that was very new to me also. Thank you so much for that. And you're in your happy place, Yes. you're doing a good job. Thank you. Please keep going. Thank you so much. So guys, that's Dr. Rajshri Sonti for you, an Ayurveda doctor and a specialist in metabolic disorder. Please reach out to her. She is from Hyderabad, a fabulous doctor, and trust me, her personal experience hai. She does not only gives you medicines and tells your problem and everything, but she genuinely sits with you to understand you as a person and helps you out in every possible way that she can. And thank you so much, Dr. Rajshri. And for our viewers, I'll see you guys next week with another guest, with another interesting story and a journey of theirs. Till then, stay happy, stay kind, and stay grateful.